Welcome again. Today we will start the last chapter of class 10th geography, that is lifelines of national economy. Now as we know that the economy of any nation depends upon the pace of the transport and the communication network of that particular country, because they provide the chain network of movement of goods and services from their supply location to the demand location. Thus, transport and communication are identified as the lifelines of national economy. So, in this chapter, we are going to understand how these modern means of communication and transport serves as a lifelines of national economy. Now, on the earth, basically, the movement of goods and the services are based on three domains: land, water, and air. Earlier, transportation was confined to land only, and human beings learned to use animals like donkeys, horses, and camels for the transportation till 3000 BC. And in 3500 BC, wheel was invented. Wheel was invented in Iraq, and this invention finally revolutionized the entire transportation system. अब देखो, जो लोग गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं। कंट्री की डेवलपमेंट सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पर्टिकुलर जगह पर उनकी स्पीड पर भी डिपेंड करती है। सो वी कैन से दैट वी नीड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब देखो, गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट मैंने आपको बताया कि अर्थ के 3 पार्ट्स में होती है: लैंड, एयर और वाटर। इसी के बेसिस पे हम जो अपना ट्रांसपोर्ट है इसको भी क्लासीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। पहले जो है बिल्कुल बिगिनिंग में हमारा जो ट्रेड था वो लिमिटेड स्पेस पर होता था, लैंड पर, और फिर धीरे धीरे वो वाटर की तरफ एक्सटेंड हुआ। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई, उससे क्या हुआ, हमारा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों दूर दूर तक फैल गए और पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से शहर में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट हो गया? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखो, हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे वो हमारा विद इन द कंट्री मिल रहा हो, तब हमें विद इन फ्यू डेज रिसीव हो जाता है। इवन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को भी हम विद इन डेज रिसीव कर लेते हैं। तो कैसे? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो आप लोग एजियो वगैरह से जो भी हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, देखो विद इन डेज पहुंच जाता है। What was the reason behind this? It is just the development of the science and technology. हमारा communication fast हो गया, हमारा transport fast हो गया, जिससे कि हमारा trade जो है बहुत अच्छे से grow किया है। So in this way, we can say that trade and transport has been complemented with communication and functions efficiently. Now, when we classify the transport network, we can say that we either have land transport, water transport, or the air transport. And land transport could be further classified as either roadways, railways, or pipelines. Under water transport, we have inland water supplies or the overseas water supply. And under airways, we have either the domestic network or the international network. Now, here let's understand the few terms which are mentioned in this flow chart. Domestic means the air transport network within the nation, and the international network means international linkages, that means air transport beyond the country. Similarly, inland means the rivers that flow within the nation. As we know that we have inland navigation through Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Krishna, Godavari, Narmada, Tapi, etc. These riverine tracks are called inland transport system. Now the term overseas refers to the peripheral areas or the coastal areas
from where we can easily export and import the products. And in the last heading, land transport, the word roadways, railways and pipelines are cleared themselves by the name only. Now let's begin with the first transportation system, that is roadways. Now India has the largest roadways network in the world with the nearly 2.3 million kilometer of road length, that is ready. Now here one question arises that why roads are more feasible than any other transportation system. So the primary or the basic reason here is that the construction of roadways is cheaper and we can always traverse through roadways on a dissected topography. So it is very easy to reach remote areas by means of roadways. Even if there is very high or very steep gradient, then also construction of roads would be the easiest way for the travel, because the construction of railways or the pipelines is not feasible mode in the such kind of areas. Roadways is the most economical in terms of construction and one-time cost. Then roadways also provide us door to door services. अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो इजीली रोड हमें जो है जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं वहाँ से खाना हमारे घर एकदम से वो लाकर दे देता है. अगर यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करें कि रेलवे के थ्रू हो, क्या ये पॉसिबल है कि वो हमारे दरवाजे तक ट्रेन आके हमें वो हमारा ऑर्डर्ड मटेरियल डिलीवर करेगी? नहीं. अब ऐसे ही मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, या आप और अपने ऑनलाइन जो हैं ऑर्डर्स जहाँ से करते हो, क्या वो आपको डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू रेलवेज? नहीं. इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द रोडवेज. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. अब देखो जैसे कि मुझे करनाल से अमृतसर गोल्डन टेम्पल विज़िट करने जाना है, तो मैं पहले अपने घर से लेकर करनाल रेलवे स्टेशन तक जाऊंगी वाया रोडवेज. फिर उसके बाद में मैं ट्रेन से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से जा सकती हूँ और फिर वहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरकर अगेन रोडवेज की हेल्प से ही मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुँच पाऊँगी. ठीक है. देन इन द सेम वे आई हैव टू रिटर्न बैक. तो कैसे आएंगे? गोल्डन टेम्पल से रोडवेज का यूज़ करते हुए रेलवे स्टेशन तक, फिर रेलवे स्टेशन अमृतसर से लेके करनाल रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आएंगे रेलवेज की हेल्प से. फिर करनाल रेलवे स्टेशन से मैं अपने घर तक अगेन रोडवेज की हेल्प से ही पहुंच पाऊंगी. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डोर टू डोर सर्विसेज provided by roadways. Then next is road transport is also used as a feeder to the other modes of transportations. अब देखो ये रोड ट्रांसपोर्ट कैसे फीडर की तरह एक्ट करता है. अब देखो अगर मुझे यहाँ अपने सेंटर से रेलवे स्टेशन तक जाना है तो भी मैं रोडवेज की हेल्प लूँगी. मुझे एयरपोर्ट तक जाना है तो भी मैं रोडवेज की हेल्प लूँगी. फिर अगर मुझे कोई सामान एक्सपोर्ट करना है थ्रू पोर्ट्स तक भी मुझे रोडवेज की ही हेल्प से जाना है. यानी कि जो रोडवेज हैं ये कनेक्ट किए हुए हैं रेलवेज को, यही इसी से कनेक्टिविटी बैठती है एयरपोर्ट्स तक, और यही रोडवेज जो हैं हमें पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि पोर्ट तक जाने के लिए भी अगर मुझे जाना है तो मुझे रोडवेज की ही हेल्प लेनी है. Now when we talk about the development in terms of road network, we talk about road density. Now what is road density? Road density is the length of the road per 100 square kilometer of area. अब देखो हमारे कंट्री की जो एवरेज रोड डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 142.88 kilometers. Now depending upon the type of construction, the roads can be classified in 6 major types. So these types are, the first one is the golden quadrilateral super highways. अब ये जो golden quadrilateral super highways हैं ये हमारे कंट्री के बेस्ट रोडवेज हैं और इसे जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है, NHAI। और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं, ये हमारे कंट्री के 4 मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करता है। और ये 4 मेगा सिटीज़ कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अब इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे में 2 कॉरिडोर्स भी हैं। और वो कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं? एक तो है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और सेकंड है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है, या कौन सी मेगा सिटीज़ इसमें कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से, या इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है इसका कंस्ट्रक्शन और ये मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है। तो दीज फ्यू पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंड इज द नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देन कम्स द स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD। देन फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को जो है कंस्ट्रक्ट और मेंटेन जिला परिषद करता है। देन फिफ्थ इज अदर रोड्स, और यू कैन से रूरल रोड्स। तो ये रूरल रोड्स जो होती हैं इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज द बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स स्टडी all these 6 types of roads one by one. The first one is the golden quadrilateral super highways. अब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है ना, ये एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है। और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने नॉर्थ में दिल्ली से लेकर ईस्ट के कोलकाता को लिंक किया पहले, और फिर कोलकाता से साउथ के चेन्नई को लिंक किया, फिर चेन्नई को मुंबई से लिंक किया गया, और फिर फाइनली मुंबई को दिल्ली से जोड़ दिया गया। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स बन गए। ठीक है, इस तरीके से ये 4 साइड्स बन गए क्वाड्रिलेटरल के। अब इसके 2 कॉरिडोर्स हैं जो डायगोनल्स भी कहलाते हैं इसके वैसे तो फर्स्ट कॉरिडोर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि लिंक करता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, और दूसरा है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को लिंक करता है। एक्चुअली इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को अटल जी ने बनवाया था, और उनका मानना था कि जो इसका मेन एम था बनवाने का, उनका ये मानना था कि पूरा कंट्री आपस में इस क्वाड्रिलेटरल के थ्रू लिंक हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ट्रेवलिंग में टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, और डिस्टेंस भी बिटवीन द मेगा सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्प से बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और मेंटेन भी इसी के द्वारा होगा। नाउ दिस इमेज विल गिव यू द क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज एंड द लिंकेज ऑफ 2 कॉरिडोर्स which was explained to you just now. Next is national highways. नेशनल हाईवेज कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स जैसे लेह, लद्दाख, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, राजस्थान, ऐसे एक्सट्रीम पार्ट्स को पूरे कंट्री से जोड़ता है। और ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये प्राइमरी रोड सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये सबसे बेसिक रोड सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि नेशनल हाईवेज को CPWD
यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट भी करता है और मेंटेन भी करता है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है कि जो दिल्ली का शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसे कि हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वो नेशनल हाईवे 1 है और ये दिल्ली से लाहौर तक होता था पहले, पर अब ये दिल्ली से अमृतसर है। Then we have National Highway 8, which is from Delhi to Mumbai, and next is the National Highway 5 that covers most of the Rajasthan only. Then we have National Highway 7, which is from Varanasi to Kanyakumari, and this National Highway 7 is considered as one of the largest highway. As per recent rationalization of highway numbers, this highway has been renamed as National Highway 44 with the length of 3,806 kilometers. Next comes the state highways. State highways joins the state capitals and the major state cities. These state highways are constructed and maintained by Public Works Department, that is PWD. After state highways comes the district highways. These district highways connects the district headquarters with the other places of the district, and these district highways are maintained by Jilla Parishad. After district highways, village roads or the rural roads are there. These roads connects the village with the neighboring towns in the cities. These roads are constructed and maintained by Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Next is the border roads. Border roads are constructed and maintained by Border Road Organization, और आप इसको शॉर्ट फॉर्म ब्रो के नाम से भी याद कर सकते हो. Then these roads are border roads are basically constructed in the bordering areas of our country like India China, India Bhutan, India Myanmar, India Pakistan, India Bangladesh likewise. तो ये जो बॉर्डरिंग रोड्स होती हैं ये हमारे नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेसिकली बनाई जाती हैं. एंड ऑन दीज बॉर्डर्स वी हैव बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस विच आर एम्प्लॉयड हियर. बॉर्डर रोड्स का मेंटेनेंस ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए अलग से एस्टेब्लिश की गई है 1960 में, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस है वो रेगुलर होता है और टाइमली होता है, और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि देखो ये है हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है. यहाँ पर जो है सोल्जर्स दिन और रात हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से फूड, आर्म, एमिनेशंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं. तो ये जो रोड्स हैं ये एक स्पेशल टाइप की रोड्स आप कह सकते हो कि होती हैं, जिसको कि बड़े ध्यान से और बहुत सोच समझ के कंस्ट्रक्ट किया जाता है. Roads are also classified as metal roads or pakka roads and unmetal roads or kacha roads on the basis of the material used in construction. Now there is a difference between both metal and the unmetal road. So metal roads are made of cement, concrete or bitumen of coal, whereas unmetal roads are made of loose soil, mud, sand and stone. Metal roads are smooth and polished roads, whereas unmetal roads are rugged and dusty roads. Metal roads are all-weather roads, whereas the unmetal roads are seasonal roads which go out of use in the rainy season. Metal roads are constructed and maintained by state and central government, whereas unmetal roads are constructed and maintained by local authorities and village panchayats, etc. Total 53% roads are metal roads, whereas total 47% roads are unmetal roads or the kacha roads. Now you can have a look to the difference between these two roads, and अब मतलब टोटल हमें 47% रोड्स अभी भी हमारे कंट्री में बनाने को बाकी हैं. मतलब ये कच्ची सड़कें हैं, इनको पक्का रोड्स या मेटल रोड्स में कन्वर्ट करने
की ज़रूरत है और ये कन्वर्जन हमें दिखाता है कि इतना परसेंट 47% अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हमें हमारी कंट्री को डेवलप होने में कितना और समय लगेगा। अब आप देख लो, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस अब तक आप नंबर ऑफ़ ईयर्स काउंट करो तो उसमें सिर्फ 53% रोड्स मेटल बन पाई हैं। सो हाउ मेनी मोर ईयर्स विल टेक टू convert 47% of unmetal roads to the metal ones? Now, there are few challenges which are faced by the road transportation. So, just have a look to these, like large volume of traffic and passengers, and the road network is not sufficient for it. अब आप सबको पता है कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो रोड नेटवर्क है वो वाइड स्प्रेड नहीं है। मतलब आप उसकी देखो या तो सिंगल लेन मिलेगा, आप विद इन द कॉलोनीज सिंगल लेन रोड नेटवर्क है, और इवन जब तक आप हाईवे को टच नहीं करते तब तक जो है डबल लेन मुश्किल ही मिलता है। तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है और रोड सफिशिएंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। Then second is half of the roads are unmetal, they are of no use during rainy season. ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, जो अनमेटल रोड्स होती हैं वो रगेड होती हैं, डस्टी होती हैं, और ये जो रोड्स होती हैं ये लूज सॉइल, मड, सैंड और स्टोन से बनी होती हैं, जिसकी वजह से रेनी सीजन में क्या होता है, जगह जगह कीचड़ हो जाता है और गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर लगभग आधी सड़कें ऐसी हैं तो फिर हमारे लिए तो ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत वाली बात है ही है। देन थर्ड वन इज़ रोड्स आर कंजेस्टेड इन सिटीज़। जस्ट अभी मैंने आपको बताया रोड्स डबल लेन सफिशिएंट नहीं है। 4 लेन रोड्स, 6 लेन रोड्स जो हैं, 4 लेन रोड्स तो हों कम से कम। जो मेगा सिटीज़ हैं उसमें भी 4 लेन रोड्स नहीं हैं, 2 लेन ही हैं। बहुत कम देखने को मिलता है 4 लेन रोड्स। तो इस वजह से रोड्स को हम सिटी एरिया में कंजेस्टेड होने की वजह से दिक्कत आती है। Then the fourth one is most of the bridges and culverts are old and narrow. ब्रिजेस आपने देखे हुए वो काफ़ी नैरो हैं, वो भी ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। कल्वर्ट्स का मतलब होता है अंडरपास, देखा आपने, जैसे सड़क के ऊपर ब्रिज टाइप का बना रहता है, ऊपर भी व्हीकल्स जाते हैं और फिर नीचे एक टनल टाइप का बना होता है और उसमें से व्हीकल पास होते हैं। नाउ जस्ट हैव अ लुक टू दिस स्लाइड। अब आपको इस फिगर को देख के क्लियर हो गया होगा कि कल्वर्ट्स क्या चीज़ होते हैं। तो ये कल्वर्ट्स भी काफ़ी नैरो हैं, ब्रिजेस भी नैरो हैं और कल्वर्ट्स भी, तो जिसकी वजह से अगेन ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। अब देखो हैवी व्हीकल्स भी हमारे रोड पे ही हैं, लाइट वेट व्हीकल्स भी हैं, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, सब कुछ हमारा रोड पे ही है। तो इसलिए रोड हमारी चौड़ी होनी चाहिए, 4 लेन्स होनी चाहिए मैक्सिमम। जो है सड़कें वो सिंगल लेन की जगह 2 डबल लेन होनी चाहिए। तो ये चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। देन last but the most important thing is roadside amenities like telephone booths, books, emergency services and police protection are poor. They need improvement. ये आप सब ने देखा होगा, इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो नियर बाय टेलीफोन बूथ होता है वहाँ से कभी भी नंबर डायल होता ही नहीं है। और एमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी हैं, बोर्ड्स इतनी दूर दूर लगे होते हैं कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ ना तो किसी को इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर याद है, और इन केस है भी तो पहले इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लग जाता है कि वो एक्सीडेंटल केस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी सर्विसेज भी काफ़ी पुअर हैं हमारे कंट्री में। फिर पुलिस प्रोटेक्शन आर वेरी पुअर। पुलिस ये तो एक आम सिनेरियो है देखने के लिए कि वैसे पुलिस कभी भी अलर्ट रहती ही नहीं अनलेस अनटिल कोई स्पेशल चेकिंग जो है डे हो कि भी हाँ आज पुलिस पे शिकंजा कसा हुआ है, तब वो अलर्ट होती है, अदरवाइज दे आर डैम केयर्स। सो ऑल दीज थिंग्स नीड इम्प्रूवमेंट इन आवर कंट्री. Next important mode of transportation is railways. Now, railways is the largest PSU in India
And for the first time in 2017, rail budget and the union budget has been merged. It has been integrating the nation from last 150 years. Railways originated in India with the kind of British advent in India, and the first train was run from Mumbai to Thane. Railways are classified under three heads: broad gauge, narrow gauge, and the meter gauge. Narrow gauge nowadays found only in the hilly tracks, which is a kind of UNESCO heritage site for most of the regions, and most of the network nowadays is of broad gauge only. Now, railway connectivity has moved from coal to diesel, and finally, most of the lines are now electrified. So, there has been a transition in the kind of power supply that has been used in railways. Railways are best for plain areas, high density areas, and agricultural areas. It's difficult to maintain railways in the mountainous tracks, desert tracks, and the areas which are prone to landslide. Now, the Diamond Quadrilateral, this is exactly the same as the Golden Quadrilateral Superhighways. So, Diamond Quadrilateral refers to the quadrilateral which are formed by the high-speed rail network between the four metropolitans. अब इंडिया में पैसेंजर्स और गुड्स एक जगह से दूसरी जगह यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लेके जाने के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट रेलवेज ही है। अगर हमें किसी बिजनेस मीटिंग में जाना होता है तो हम रेलवेज का यूज़ करते हैं, कहीं घूमने जाना होता है तब भी हम रेलवेज का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखो आप, क्या आपने कभी पैलेस ऑन व्हील्स नाम की ट्रेन सुनी है? तो ऐसी ही हमारे पास इंडिया में 7 लग्जरी ट्रेन्स हैं जिसको हम लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन्स के नाम से जानते हैं। और जैसे ये पैलेस ऑन व्हील्स है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज इन एसोसिएशन विद द राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट Corporation to promote tourism in Rajasthan. In the same way, we have 7 luxury trains like Maharaja Express, Golden Chariot, Deccan Odyssey, and Fairy Queen Express, etc. तो साइट सीइंग के लिए भी रेलवेज को हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, और तीर्थ यात्रा के लिए भी रेलवेज का यूज़ किया जाता है। आपको मालूम है कुछ स्पेशल ट्रेन्स होती हैं जो सिर्फ तीर्थ यात्रा कराती हैं। तो इस तरीके से जो है ट्रेन्स का हम यूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ट्रेन्स हैं ही सही। अब इंडिया में नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए रेलवे से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती तो नॉर्थ और साउथ दोनों आपस में दोनों का लिंक बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको लिंक करना बहुत मुश्किल हो जाता। और दूसरा है रेलवेज। रेलवेज से क्या हुआ है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है इंडिया का आपस में काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ डायमंड क्वाड्रिलेटरल। डायमंड क्वाड्रिलेटरल इज एग्जैक्टली सेम एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो जो 4 मेट्रोपॉलिटन्स में ये हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बना है, इससे क्या है कि पूरा कंट्री आपस में कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया। तो देखो, रेलवेज का स्टार्टिंग अंग्रेज कर गए हमारे यहाँ, ब्रिटिशर्स कर गए। इन द सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज की भी बिगिनिंग जो है ये ब्रिटिशर्स ने ही की। तो इस तरीके से इन दोनों को की हमारे कंट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, कंट्री को आपस में लिंक करने के लिए। सेकंड है कि अब मुंबई में देख लो आप, जितने भी बिजनेस हैं या जितने भी लोग हैं, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द लोकल ट्रेन्स। इवन लंच बॉक्स अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह अपने ऑफिस में पहुंचाना है तो भी इन मुंबई द पीपल डिपेंड ऑन ट्रेन्स। डब्बा वाला सिस्टम देखा है, गरम गरम लंच पहुंचाता है घर से ऑफिस डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफिस का जहां उनको पहुंचाना होता है, बट इट इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू द रेलवेज ओनली।
और सेम केस जो है इट मूव्स विद द पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार स्टेट्स वेयर देयर आर लेबरर्स हु ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय ट्रेन फॉर देयर वर्क। अब देखो, अगर ये लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाके काम नहीं करेगी तो इनके लिए जो इनका लाइवलीहुड है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, कमाने का साधन ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब नंबर जो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा है जो डेली ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। अब आप सोच सकते हो कि अगर ट्रेन हमारे इंडिया में नहीं होती तो कैसा हमारा लाइफस्टाइल होता। एट प्रेजेंट, आज की तारीख में इंडियन रेलवे जो है 18 जोन्स में ऑर्गेनाइज्ड है। अब देखो, कोरोना का टाइम चल रहा है और इस समय क्या है, कोरोना काफ़ी पीक पे है। लेकिन जब बिगनिंग में जब कोरोना के केसेस हमारे कंट्री में स्टार्ट हुए थे तो उस समय क्या था कि काफ़ी सारे लोग अपने जॉब की वजह से अपने नेटिव प्लेस से, अपने घरों से दूर दूर थे और एकदम से लॉकडाउन हो गया तो लोगों के पास ये कंडीशन आ गई कि वो क्योंकि जॉब्स वगैरह बंद हो गई तो वो भूखे मरने लगे। तो उसमें क्या हुआ था कि दे आर डिमांडिंग कि हमें हमारे घर वापस भेजो। अब उस समय क्या था कि कार या बाइक और ट्रक ये काम नहीं आए। उस समय भी क्या है, रेलवेज ही काम आए जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह, उनकी जगह जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ इजीली पहुँचाया जा सका। Now let's understand the different factors that affects the distribution pattern of railway in India. The first one is the physiographic. Physiographic factor क्या है? इसका मतलब है कि ज़मीन कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है या हिली है, माउंटेनियस है या डिजर्टेड ज़मीन है। तो इस तरीके से ये जो ज़मीन है उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है हमारे रेलवेज़ की डेवलपमेंट पे। अगर हम नदर्न प्लेन्स को देखते हैं तो यहाँ पर रेलवेज़ की ग्रोथ के सबसे ज़्यादा फैक्टर्स थे और क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लंबे चौड़े इलाके थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी थी और खूब खेती के साधन, यानी कि हर एंगल से जो नदर्न प्लेन्स हैं वो ओके थे। ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लोगों के लिए भी एकदम सही रहा और इकोनॉमी चलाने वाली जो हमारी एग्रीकल्चर है उसका भी जो माल आता था, प्रोडक्ट आता था, उसकी ढुलाई के लिए भी यहाँ पर एकदम सही कंडीशंस थी। और इस रीजन में जो चौड़ी चौड़ी नदियाँ थी उनके ऊपर पुल बनाकर रेलवे लाइंस बिछाना का काम इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, कहीं कमी तो आई थी। वो कमी ये थी कि ये जो ब्रिजेस थे वो पुराने ज़माने के थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे ही मैक्सिमम रिवर्स के ऊपर ब्रिज बना दिए थे। तो हालांकि जहाँ ब्रिज नहीं बनाया वो तो बनाने में, वहाँ पुल बनाने में, उन रिवर्स के ऊपर पुल बनाने में हमें काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ये मैक्सिमम जो हैं ब्रिजेस पहले ही बनाकर चले गए थे इंडिया से। अब अगर हम सदर्न साइड यानी कि पेनिनसुलर रीजन को देखें तो यहाँ रेलवे ट्रैक्स या तो दो हिल्स के बीच में बिछाने पड़े या फिर टनल बनाकर रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं। अब अगर सह्याद्री के इलाके को देखते हैं यानी कि वेस्टर्न घाट्स को, जो कि कॉन्टिन्यूस घाट्स हैं, और इन घाट्स को हम क्रॉस कैसे करते हैं, या इसमें घाट्स में ना बीच बीच में पासेस बने हुए हैं जिसकी हेल्प से हम इन घाट्स को क्रॉस करते हैं। तो 1993 में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ कोंकण रीजन में भी रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और कोंकण रेलवेज़ की शुरुआत की। अब क्योंकि ये रीजन जो है हमारे कंट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन है, तो यहाँ पर भी कोंकण रेलवेज़ की हेल्प से ही जो है गुड्स और पैसेंजर्स का लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मूवमेंट शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गया। बिगनिंग में तो जो है ये रूट ट्रेन्स के रन करने के लिए बहुत मुश्किल रहा क्योंकि कहीं पे भी जो है ट्रैक सिंक हो जाता था और लैंडस्लाइड्स हो जाती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ के जितने भी हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर स्टील के ना जाल लगाए गए ताकि लैंडस्लाइड से बचाया जा सके, ट्रैक सिंकिंग से रोका जा सके। और फाइनली जो है वहाँ पर ट्रेन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, रेलवे कंस्ट्रक्शन अच्छा हो गया और
उसका मेंटेनेंस भी अब इजीली हो सकता है और ट्रेन्स काफ़ी स्मूथली रन करती हैं इस एरिया में भी। सो ओवरऑल आज कंट्री के जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, अगर हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके एक बना लेते हैं, तब भी रेलवेज़ की जगह हमारे नेशनल इकोनॉमी में सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैं आपको हर चैप्टर में समझाती हूँ, अगर कोई भी चीज़ हम नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, तो उसके अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। मतलब कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी तरीके से रेल ट्रांसपोर्ट जो है इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र कर रहा है कुछ प्रॉब्लम से, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, विच इज़ अगेंस्ट द रूल्स, और ये काम हमें नहीं करना चाहिए। फिर रेलवे प्रॉपर्टी की तोड़ा फोड़ी और उसकी चोरियाँ जो करते हैं लोग, वो ठीक नहीं है। अब देखो, कोई भी देश में दंगा होता है तो क्या करते हैं, रेलवे ट्रेन में आग लगा दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग अपने गुस्से को दिखाते हैं गवर्नमेंट को कि हम नाराज़ हैं। तो क्या ये बात सही है? इससे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो रेलवे प्रॉपर्टी उसको डैमेज कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो ट्रेन में से कुछ ना कुछ चीज़ें चुरा के ले जाते हैं। जैसे नल हैं वहाँ के, वो चुरा ले जाते हैं। वहाँ सैनिटाइजर्स रखे रहते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। और कई तो ऐसे भी होते हैं, वो बैठ के जब 1 दिन का या 2 दिन का सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन में, काफ़ी दूर तक ट्रेवल करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो क्या करते हैं, उसकी सीट्स फाड़ देते हैं। तो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो ये भी एक बहुत गलत बात है। देन पीपल जो हैं, हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रेन में जो एक इमरजेंसी चेन लगी रहती है उसको अननेसेसरीली पुल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर से काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है रेलवेज़ को और हमें, क्योंकि देखो, जब हम चेन पुल करते हैं तो ट्रेन जो है जिस डिफाइंड टाइम से वहाँ से चली जानी चाहिए, तो वो उसी ट्रैक पे रुकी रहती है। सपोज़ करो 2 घंटा उस चेन की पुलिंग की इंक्वायरी और सब कुछ इस मामले को सॉर्ट आउट करने में लगता है, तो 2 घंटे तक उस ट्रेन के उस ट्रैक पे जितनी ट्रेन्स ने रन करना था वो सब जो है शेड्यूल लेट हो जाता है, और फाइनली क्या है, पूरा रेलवे सिस्टम जो है इफ़ेक्ट होता है। So all these are the negative things, or you can say things by which rail transport suffers a lots of problem. So we should not repeat these kind of things again and again. So students, this is all about today's class. Again, with the hope that you understand well, but still if you have any query, any doubt, you can ask me any day, anytime. Or if you feel shy, then please write your query in the comment section. I will sort out your problem there only. So till next class, keep learning, keep revising.